Good morning, dear students. Today we start our 10th class chapters real numbers. देखो ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਐਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਨ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 0। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 ਤੋਂ, ਦੈਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ, 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰ ਡਿਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, I ਔਰ Z ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ I ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ Z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 0 ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ -1 -2 -3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ, ਬਟ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 1.6 2.5 3.1 ਜਾਂ -2.6, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ, ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ 1 2 3 ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਿਊ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੀ ਔਰ ਕਿਊ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 2/5 ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, -3/7, 1/-6, 9/11 ਆ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੋਂ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਊ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪੀ ਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਊ ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2/0। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਊ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੋ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸੀਗੀ 0 ਦੀ, ਸੌਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸੀਗੀ 0 ਦੀ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕੋਲ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੋਲ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਨੰਬਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਇਰੈਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਰੈਸ਼ਨਲ? ਉਹੀ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣ, √2, √3, √5, ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਆ ਗਏ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਪਲੱਸ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ, ਹੋਲ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਔਰ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਟਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ 9th 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ। a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b ਇੰਟੂ a ਮਾਈਨਸ b। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ? a ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ? a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 3a ਸਕੇਅਰ b ਪਲੱਸ 3ab ਦਾ ਹੋਲ b ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3a ਸਕੇਅਰ b ਪਲੱਸ 3ab ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ,
ठीक है जी। दोनों डिफरेंट फॉर्मूलाज का ध्यान रखो। वो हैगा ए प्लस बी का होल क्यूब, दैन ये की हैगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। वो होल क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ अलग चा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो की हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। नैक्सट आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कि इक्वल हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। साइन ਦੇ ਵਿੱਚ कन्फ्यूज नहीं हो जाना, इतने प्लस ਸੀਗਾ तो इतने माइनस ਸੀਗਾ, ठीक है जी। अगर इतने माइनस सी तो इतने माइनस आ गया, सारी टर्म पॉजिटिव दी होगी, ठीक है जी। आ दोनों फॉर्मूलाज ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस च कन्फ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਆ, given two numbers a and b, there exist q and r in such a way that a is equal to b into q plus r, where r lies between 0 and b। कहना की चाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ a ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ b ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, q ਐਂਡ r ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ, a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਇੰਟੂ q ਪਲਸ r, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ b ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗੀ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ b ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਔਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ b ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਔਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ, ਬਟ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬਟ b ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डिवीजन करनी आती है ना, की बोलते होंगे सी जो आप डिवीजन करते होंगे जोड़ा ये रखीदा वैल्यू उन्होंने की बोलते सी डिविडेंड, जिहदे नाल आपां नूं डिवाइड करवाते थे उन्होंने बोलते सी डिवीज़र, और जो वैल्यू नूं आंदी हुंदी सी डिवाइस करा के उन्होंने की बोलते सी क्वेश्चन, और जो बाकी बच जाता सी उन्होंने की बोलते सी रिमाइंडर, ठीक है जी। मतलब वही है कि अपने कोल दो नंबर्स दिते होणगे ए एंड बी, ए नूं अंदर रख लिया, बी दे नाल उन्होंने डिवाइड करवाता, ठीक है। एग्जिस्ट उन्हें की बोलिया सी क्यू एंड आर च करनगे। इट मीनस की हो गया कि जो मैं बी और बी नूं ए दे नाल डिवाइड करवाऊँगी दैन कोई नंबर आऊगा, उन्होंने की बोलते हैं क्यू मतलब क्वेश्चन, और जो बच गया उन्होंने की बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है जी। इट मीनस मेरे को जो डिविडेंड आ वो की हो गया ए, क्वेश्चन की हो गया क्यू, डिवीज़र की हो गया बी, और जो बच गया रिमाइंडर की हो गया आर, ठीक है जी। इट मीनस बन की गया यही हो गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की सी मेरा डिविडेंड, तो इतने की लिखता मैं इस जगह पर डिविडेंड। बी की सी मेरा डिवाइज़र, तो इतने की हो गया डिवाइज़र, इनटू क्यू की सी मेरा क्वेश्चंस लिखता, प्लस आर की सी मेरा रिमाइंडर, ठीक है जी। आ वाला फॉर्मूला होंदा है। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ कोई भी दो नंबर्स दिते होणगे जिन्होंने आप डिवाइड करना है, उन्होंने आप बड़े वाली टर्म नूं अंदर रख देंगे सीगे और छोटे वाली टर्म नाल डिवाइड करवाते सी। देखो फस्ट सम देखते हैं आप, फस्ट सम देखो 1.1 का उन्हें की बोलिया, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। फर्स्टली उन्हें की बोलता यूक्लिड डिवीजन यूज़ करो बट फाइंड की करना HCF, ठीक है जी। इट मीनस की हो गया कि मैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला तो देख लिया, हम HCF वो किद्दां फाइंड करीदा है, इस सम नूं आपां उन्नी देर तक सॉल्व आउट करी जाइदा है जिन्नी देर तक मेरा रिमाइंडर जां फिर बाकी जीरो नहीं बचता, ठीक है जी। इस सम नूं आपां उन्नी देर तक सॉल्व आउट करी जाइदा जो HCF फाइंड करना है जिन्नी देर तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, ठीक है जी। हुण इहनूं ट्राई करके देखते हैं किवें हुंदा। और HCF की फुल फॉर्म की हुंदी है, देखो HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सब तो बड़ा नंबर जोड़ा दिते हुए दोनों नंबर्स के नाल डिवाइड हो सके। हुण देखो फर्स्ट टर्म च उन्हें की बोलिया सीगा कि 135 मतलब 135 एंड 225 का तुसीं HCF फाइंड करना है यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप की इन्हां चों देखना बड़ा नंबर किहड़ा और छोटा नंबर किहड़ा है, ठीक है जी। सिंस वी चेक सॉल्व आउट करो सोल्यूशन सिंस हुण बड़ा किहड़ा आ 225, ठीक है जी। ग्रेटर किहदे कोल 135 ते, मतलब 225 ग्रेटर दैन 135, ठीक है जी। इत्थों तो मैं लिखता कि हाँ जी भी बड़ा नंबर किहड़ा। फिर उन्हें की बोलिया बाय यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन लिखो वाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यही बोलिया ना उन्हें कि यही यूज़ करके तुसी सम नूं सॉल्व आउट करो और HCF फाइंड करो। फस्ट ऑफ ऑल आपां की देखते हुंदे सीगे कि इन्हां चों वड्डी वैल्यू किहड़ी आ, जिहड़ी वड्डी वैल्यू आ उहनूं आपां अंदर रखदे हुंदे सीगे। वड्डी वैल्यू कितनी मेरी 225, ठीक है जी। और छोटी किहड़ी आ 135। इट मीनस मैं इहनूं किहदे नाल सॉल्व आउट करूँगी 135 नाल, ठीक है जी। हुण देखो मैं 135 नूं अगर 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी दैन वो 225 तो वैल्यू वड्डी आ जानी है, इसलिए मैं 135 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करन लगी 1 नाल। मैं 1 नाल मल्टीप्लाई किया दैन आंसर कितना आ गया मेरा 135, ठीक है जी। हुण देखो बच की जाऊगा 5 चो 5 गए, आंसर इज़ 0, ठीक है जी। 2 तो 3 जाने लिए मैंने कैरी करना पैना, तो मैं इधरों एक कैरी ले लिया, इधर जाके कितने बन गए 12, 12 चो 3 गए 9, ठीक है जी। और इधर कितना बच गया सी कैरी तो बच 1, 1 चो 1 गए, आंसर इज़ 0। मतलब मेरे को आंसर किहड़ा बच गया 19 आ गया, ठीक है 90 आ गया। और उन्हें की बोलिया सीगा कि तुहाडा HCF उदों सॉल्व आउट होना जिन्नी देर तक तुहाडा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हुण देखो 225 किहदी जगह ते रखिया सी मैं A दी जगह ते, दैन 135 B दी जगह ते, और 1 दी जगह मेरे को की आ गया Q, रिमाइंडर दी जगह मेरे को कितना बच गया 90, ठीक है। एक तरह की आ सेम इक्वेशन बनती पई आ। हुण उन्हें की बोलिया सीगा कि यूक्लिड डिवीजन वांगू लिखना है, और वो किद्दां लिखदा हुंदा सी A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, तो लिखो A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, इहदे लिखदा हुंदा सी। A हुण मेरे कोल कितनी लई आ मैं 225, B कितनी आई सी मेरी 135 इनटू क्वेश्चन मेरा कितना आया सी 1 प्लस करके रिमाइंडर कितना आया सी मेरा 90, इन्नी टर्म हुई। बट इस रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, मतलब 90 की जगह तो रिमाइंडर होंगे ना, रिमाइंडर क्या आना चाहिए सी 0, हुण 0 नहीं आया। इट मीनस इस सम नूं मैनूं फरदर अगे होर सॉल्व आउट करना पैना है रिमाइंडर 0 लियाउण लई। हुण देखो ये मैं ए नूं 225 लिख लिया सी। हुण देखो तुसीं 135 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 135। 135 दे विच 90 नूं प्लस करो, जां 135 विच 90 नूं प्लस करो, आंसर कितना आया ना 225, मतलब इक्वल आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो, नैक्सट मैं होर सम बनाना है, तो यदा मतलब मैं हुण इत्थे डिविडेंड की लैण लगी हाँ 135 कितना होया ना तुसीं पहला भी ये चीज़, मतलब पहलों देखो मैं इनू सॉल्व आउट किया, हुण इनू तो सॉल्व आउट करके रिमाइंडर मेरा 0 आया नहीं, इसलिए फिर मैं हुण A दी जगह इनू रख लिया और B दी जगह ते मैं इनू रख लिया। यही हुंदा सीगा A और B, ठीक है जी। A दी जगह ते हुण मेरा आ वाला 135 आ गया और B दी जगह ते आ गया। हुण देखो जिद्दां आ वाले सम्स दे विच मेरे कोल किहड़ा सी 225 वड्डा सीगा, ठीक आ। हुण इस चीज़ नूं देखो, इहदे विच मेरे तो सब तो वड्डी किहड़ी वैल्यू आ 135, इसलिए सब तो वड्डी वैल्यू ने मैं अंदर रखता, और छोटी किहड़ी सी आ रही 90, तो 90 ने मैं बाहर रखता। हुण 90 नाल तुसीं डिवाइड करो, अगेन 1 ते जाऊगा 90 आ गया, ठीक है जी। तो कितना हो गया 5 दे विचों 0 हो गया, आंसर इज़ 5। हुण 3 विचों 9 जाऊगा तो इधरों कैरी लेना पैना, इधर 0 हो गया, इधर कितना बन गया 13, 13 चों 9 गया, आंसर इज़ 4, 45 हो गया। अगेन देखो 135 इज़ इक्वल टू इधर कितना आ गया सीगा मेरा 90 इंटू 1 प्लस 45, बट रिमाइंडर मेरा फिर नहीं 0 आया, ठीक है जी। रिमाइंडर मैं फिर 0 लिया आया, फिर 0 लिया से देखो हुण इन्हां चों सब तो वड्डी वैल्यू किहड़ी है 19, इट मीनस मैं अंदर ए दी जगह की रख लिया 19 और बी दी जगह ते छोटी वैल्यू 45, ठीक है जी। हुण 45 नूं जदों आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 90 आंदा, 45 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो 90 आ जांदा 90, ठीक है जी। 90 चों 90 गए 0, मतलब क्रॉस, तो आंसर कितना आ गया मेरा 0। हुण देखो इधर कितना बन गया 90 इज़ इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0, देखो 45 इंटू 2 प्लस 0, इन्नी टर्म बनी, लगी समझ। आप इस तरह सॉल्व आउट करते गए और मेरे को इन्ना आंसर आया। हुण देखो आह वाली लाइन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ HCF, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ HCF, तो ਇੱਥੇ HCF ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਈ 45, ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इतने इंग्लिश लिखा, उन्होंने पंजाबी च की लिख देना यूक्लिड वंड विधि राही,
ठीक है। सॉल्व आउट बाकी सारा इदां ही सेम करना, बस इस लाइन च उन्होंने की लिख देना, यूक्लिड वंड विधि राही। ठीक है जी, लगी समझ? लगी? तो आप एक होर ये नाल दा सम करके देखते हैं। हुण देखो मैं तुहानूं आ वाला सम करवाया, तुसीं आ दोनों सेम आ ये नाल दे कर सकते हो ना। हुण आपां सैकेंड करदे उन्होंने की बोलिया, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। पंजाबी विच की बोलता, दिखाओ कि कोई भी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या 6q + 1 ਜਾਂ 6q + 3 ਜਾਂ 6q + 5 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है जिथे q कोई संपूर्ण संख्या है। इंटीजर का मतलब ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट मतलब संपूर्ण संख्या। हुण देखो उन्हें की बोलिया सैकेंड दे विच, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है जी, मतलब कोई भी धनात्मक टांक संख्या, आप की ले लिया, लेट ए बी एनी द ऑड इंटीजर। ठीक है जी, ये मतलब की कि मैं कोई भी उन्हें कहा सीगा ना, कोई भी तुसी धनात्मक मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो। ठीक है जी, मैं कोई भी इंटीजर ले लिया ऑड 6, ओ सॉरी ए ने मैं कोई भी ऑड इंटीजर दे दिता। हुण उन्होंने इक्वेशन की दी है मेरे को, आ देखो 6q + 1 दैन 6q + 3 दैन 6q + 5, आही इक्वेशनस दित्तियां हुई हैं। हुण अपनी आ इक्वेशन मैच करो, किहदे नाल मैच हुंदी सी, A इज इक्वल टू B × Q + R, इहदे नाल हुंदी सी। ठीक है जी, हुण देखो B की जगह इत्थे की है 6, दैन Q की जगह ते Q और R की जगह इत्थे की है 1, मतलब B की जगह ते इत्थे 6 ही आ रहा है। ठीक है जी, इट मीनस B मेरे किहदे इक्वल आ, 6 दे ही। ठीक है जी, हुण आपां फाइंड करनी हुंदी है R की वैल्यू, R की वैल्यू फाइंड करते हैं, और R की वैल्यू चो की बोलदा आ कि ऑलवेज तुहाडी R की वैल्यू जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਤੋਂ ਘੱਟ ही आनी चाहिए आ, आही बोलता ਹੁੰਦਾ R। ठीक है जी, R की वैल्यू B तो घੱਟ आनी चाहिए है, 0 तो ਵੱਧ आनी चाहिए, ਜਾਂ फिर 0 के इक्वल आनी चाहिए है। तो किहड़ियां हो जाएंगी R दी वैल्यू, देखो उन्हें क्या 0 के इक्वल 0 आ सकती है, फिर उन्हें क्या 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि मेरे को B कितना आ 6, B कितना मेरे को 6 इक्वेशन ही गिवन आ। ठीक है जी 6, तो की हो गया उन्हें की क्या कि तुहाडी R की वैल्यू आ जी वो 6 तो घट होवे और 0 तो वध होवे, जां फिर 0 के इक्वल होवे। हुण 0 की इक्वल हो गई मतलब 0 आ गई आ। ठीक है, 0 तो वध किहड़ी हो जाएगी 1 2 3 4 5, उन्हें की क्या 6 तो घट नंबर किहड़े आंदे 5 तक ही आंदे, तो मेरे को R दियां आई वैल्यूज़ आ जाणगियां, आई वैल्यूज़ आ सकदियां ना। तो अपने हुणे उन्हें की बोलिया मेरे को रिमाइंडर सारा किहड़ा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है जी, दैन उन्हें की बोलिया सी बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो की हो जूगी बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लैमा जां फिर एल्गोरिदम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी, किहदे कोल हुंदी इक्वेशन A इज इक्वल टू B × Q + R, ये कोल हुंदी आ। हुण मैं R दी वैल्यूज़ ले लईआं, तो पुट करो, पुटिंग R इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, R की वैल्यूज़ आई आईयां। हुण आ किद्दां आईयां तुहानूं पता ही आ कि 6 तो घट आनियां चाहिए सी वैल्यूज़, बट 0 के इक्वल जां फिर 0 तो वध आनियां चाहिए सी। ठीक है जी, तो इक्वेशन कितनी है मेरे को A, पुट करो B की जगह तो की है मेरे को 6, तो मैं 6 पुट किया, 6q + R की जगह तो फर्स्ट मैं की पुट करन लगी हाँ 0। ठीक है, तो किहदे कोल आ गया 6q दे। ए कितना सी, ए मैं की लिया सी कोई भी ऑड इंटीजर। ठीक है जी, नैक्सट आ गया A इज इक्वल टू B, B की जगह तो की है मेरा 6, दैन नाल की है q + R की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है जी, नैक्सट 6q एज इट इज़, R की वैल्यू मेरी कितनी है 2। नैक्सट 6 B की जगह तो q एज इट इज़, R की वैल्यू कितनी है 3। नैक्सट 6q + 4, नैक्सट 6q + 5, 0 तो लगे 5 तक वैल्यूज़ पुट करनी, पुट की 0 1 2 3 4 5, और पुट के करनी यूक्लिड डिवीजन के अंदर। B की जगह तो की सीगा मेरे को 6,
तो मैं बी की जगह तो सारी साइड पर 6 पातियाँ। क्यों एज इट इज़ सी तो क्यों एज इट इज़ चली गया। आर दी वैल्यूज़ 1 तो लैके 5 तक आईਆਂ तो आर दी वैल्यूज़ इतने किनिया हो गई 1 तो लैके 5 तक पुट करतियाँ। ठीक है जी। ए अपनी की सी कोई भी ऑड इंटीजर सीगा अपना ए। ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਔਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਈਵਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਈਵਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਈਵਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 6 + 1 ਬਚ ਗਿਆ, 3 ਬਚ ਗਿਆ, 6 + 5 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਰ ਦੀਆਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਔਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਔਡ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਔਰ 2 ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਔਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਔਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 3 5। ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਐਨ ਆਰਮੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ 6 मतलब कितना हो गया 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहना की चाहया उन्हें। हुण सारिਆਂ ने आर्मी की परेड देखी होएगी। ठीक है जी। टी वी विच देख लो ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਮੈਂਬਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ 32 ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 616 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਦੈਨ 616 ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 32 ਲੋਕ ਆ ਉਹ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ 616 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 616 ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 616 ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ 616 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁਣ। ਨੋ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖ ਲਓ 616 ਔਰ 32 ਮਤਲਬ 32 ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ 616। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ 32 ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 616 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, 32 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम की बोल रहा है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम m इंटीजर m मतलब हुण की यूज़ कर लिया कोई भी इंटीजर जिद्दां उन्होंने पिछे की यूज़ किया सी क्यों भी की सी मेरा कोई भी इंटीजर मतलब m की जगह ते हुण उन्होंने की रखता क्यों। ठीक है जी। ये की आ ये भी अगेन तुसीं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा नूं यूज़ करना आ। ये की हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स आ वो स्केयरिंग वाले होणगे। ठीक है जी। फॉर्मूलाज आप पहले लगा चुके हैं, लिखवा ले आ, नोट डाउन कर लिया, उन्होंने याद कर लियो। ठीक है जी। हुण देखो सम नूं आपां किद्दां सॉल्व आउट करना। हुण देखो आपां कोई भी ले लिया, लैट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जां फिर तुसीं एक्स की जगह ते कई बच्चे ए भी रख सकते हैं। ठीक है जी। जां फिर तुसीं लिख लो लैट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। इसलिए फिर मैं दोनों लिखते, जां तुसीं एक्स लिख लो ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ और पा के ए लिख लो। ठीक है जी। कोई वरी नहीं है। एंड बी इज़ 3 बी 3 ਦੇ इक्वल कितना आ गया कंपेयर करो अपनी इक्वेशन की होंगी ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आही इक्वेशन होंगी सी। आप हुण उन्होंने दिता कि 3m + 1
ठीक है जी। हुण मैं ए की ले लिया एक्स, ठीक है जी। तो पुट किया मैं एक्स इज इक्वल टू बी नू कंपेयर करो, बी किहदे कोल आ गया 3 दे, मतलब इहदे नाल सम 0 ही कुछ होएगा, ठीक है जी। बी किहदे कोल आ गया 3 दे, क्यू की जगह तो की आ गया एम, ठीक है जी। प्लस 0 लिखो या फिर ना लिखो, एक तो एक क्वेश्चन बन गई एक्स इज इक्वल टू 3m, ठीक है जी। या फिर तुसीं इहनूं लिख सकते हो, ਜਾਂ फिर कंपेयर करके की आ जाता सी तुहाडा 3q। 3q किद्दां, मतलब 3 तो आ वाला ही m की जगह तो इत्थे की यूज़ हो गया q, क्योंकि b की जगह इत्थे की यूज़ हो गया सी 3, ठीक आ। ये तो हो गया फर्स्ट वाला स्टैप। दैन उन्हें की किया सीगा स्केयरिंग, ये विच कॉन्सैप्ट किहड़ा आ रहा सी स्केयरिंग दा। सो इत्थे की लिखांगे आपां स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो बोथ साइड्स आई हो गई, मतलब मैं 3m नहीं लिया, मैं की ले लिया एक्स इज इक्वल टू 3q ले लिया, m की जगह तो मैं किहड़ा रखता q पॉइंट, ठीक है जी। तो कितना हो जाऊगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3q दा होल स्केयर। हुण ओपन कर लो, 3 का स्केयर कितना हो गया 3 × 3 9, q का नाल एज इट इज़ स्केयर आ गया, ठीक आ। तो ये किद्दां इद्दां लिख सकते हैं आप 3 × 3q स्केयर। तो की हो गया 3 × 3 9, q का स्केयर एज इट इज़, ठीक आ। हुण देखो 3 नूं मैं एज इट इज़ लिखण लगी हाँ, और आ वाली इक्वेशन मैं लिखता m1। इन्होंने आप सारे ईजी तरीके ना, मतलब एन प्रॉपरली सॉल्व आउट कर करके ईजी बनाना है ना। तो इतने मतलब की लिखूँगी, फिर मैं लाइन लिखनी पैनी है मैनू, वेयर m1 किहदे कोल हो गया 3q स्केयर एंड m1 इज़ एनी इंटीजर, ठीक है जी। देखो मैं आ वाली सम्स नूं कंपेयर किया से इस इक्वेशन, ठीक है जी। ए अपना कोई भी ए की जगह तो मैं की ले लिया कोई भी एक्स इंटीजर पुट करता, दैन बी की जगह तो मेरा कितना आ रहा सी 3, दैन क्यू की जगह तो कितना आ रहा सी एम, तो फिर मैं एम की जगह तो की रखता क्यू, तो कितना हो गया 3q। हुण मैं स्केयरिंग करती इस और इस इक्वेशन की हो गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3q स्केयर, 3 × 3 9, क्यू का स्केयर एज इट इज़। हुण आप इहनूं इदां भी लिख सकते सी सिंपलीफाई करके, लिखता मैं आ वाली 3 नूं एज इट इज़ लिखता, दैन आ वाली इक्वेशन नूं जां फिर आ वाली टर्म नूं मैं किहदे कोल पुट करता m1 दे, तो की हो गया इज इक्वल टू 3m1, ठीक है। हुण नैक्सट आओ, नैक्सट की आ +1 वाला कॉन्सैप्ट आ, तो कंपेयर करो कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू बी की जगह तो क्या आ रहा 3, मतलब ये कंपेयर करनी ए की जगह तो मेरा कितना आ गया एक्स, दैन बी की जगह तो कितना आ गया 3, नाल कितना आ गया क्यू, प्लस आर की जगह तो कितना आ गया मेरा 1, ठीक है। आ इक्वेशन बनी। अगेन गल स्केयरिंग दी आ, उन्हें स्टेटमेंट स्केयरिंग बोलिया सी, तो लिखो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो की हो जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3q + 1 द होल स्केयर, यही हो जाएगा। हुण सब नूं याद आ a + b द होल स्केयर का फॉर्मूला मैं की लिखिया होया सीगा a स्केयर + b स्केयर + 2ab, आई बनया ना a + b द होल स्केयर a स्केयर + b स्केयर + 2ab। इन्हूं ओपन अप करो कितना हो गया 9q स्केयर + 1 + 6q, आई टर्म बन गई, आई वाली टर्म बन गई है ना जी। हुण देखो मैनू इदां लिख सकती हाँ 3q स्केयर + 1 + 1 3 2q। हुण देखो 3 नूं 3 नाल कितना 9, नाल की आ गया q स्केयर + 1 एज इट इज़, 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 6, नाल q एज इट इज़, ठीक है जी। हुण देखो इन्हां दोनों के अंदर 3 3 हैगा आ, तो मैं इन्हां दोनों चों 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया मेरे को 3q स्केयर + 2q, नाल की आ गया आ वाला +1, लगी समझ, लगी बई। हुण देखो जो इत्थे 3 दे नाल कोई टर्म आई सी उन्होंने मैं m1 पुट करता सी, हुण 3 दे नाल आ वाली सारी टर्म आ रही है, इन्हें मैं की पुट कर दूँगी m2। तो लिखो वेयर केड़ी टर्म आ रही है, आही सारी आ रही है 3q स्केयर + 2q किहदे कोल आ गया m2 दे, और ये की आ q सम या फिर m2 सम इंटीजर्स, ठीक है जी। हुण देखो
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 3q² ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ m1। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ m2। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ m2 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ +1। ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। अगर नैक्सट आप इधर चलते गए हूँ इतने कितना सी 3m+0 3m+1 3m+2 3m+3 3m+4 अप टू सो। ठीक है जी, आप कोई भी इंटीजर्स लैके इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है तो मैं नैक्सट इक्वेशन कि ले लूँगी फिर 3m+2। ठीक है, तो अगेन की होगी इक्वेशन x आ जाऊगी ये जगह पर, b की जगह पर मेरा कितना आ गया 3, दैन m की जगह पर मेरा कितना आ गया q, प्लस आर की जगह तो हूँ कितना आ जाऊगा 2। देखो पहलों की सीगा x = 3q, आर नहीं सी, आर 0 सी। दैन की हो गया x = या फिर a = bq + r। तो b कितनी होगी 3, आर कितनी होगी 1। नैक्सट b 3 आ, दैन आर कितनी होगी 2। आर की वैल्यू कितना आपको कितना पता कि मैं 0 1 2 लैनी आ, क्यों आपको इस इक्वेशन तो पता होना चाहिए। ठीक है जी, अपनी इक्वेशन ऑलवेज की बोलती सी कि थोड़ी जी भी आर आ उन्हें कि लाई करना है बी और 0 तो लैके, मतलब थोड़ी आर हमेशा बी तो छोटी होगी, दैन 0 तो वड्डी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। बी हुण मेरा इत्थे कितना आ 3, तो यदा मतलब आर मेरी कितनी हो जाएगी 3 तो छोटी हो जाएगी और 0 के इक्वल या फिर 0 तो वड्डी हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट 3 तो घट होनी चाहिए और 3 तो घट कितना आता 2। यदा मतलब मेरिया आर दी वैल्यू जस्ट 0 1 2 आनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं आर दी वैल्यूज पहले कितनी आ गई 0, दूसरे 1, तीसरे 2। ठीक है जी, दैन देखो सॉल्व आउट करो, इक्वेशन बन गई। फिर वो की बोलते होंगे सीगे स्केयरिंग वाला कॉन्सैप्ट, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो अगेन पुट करो कितना बन गया x² = 3q + 2 का होल स्केयर। तो a + b का होल स्केयर किहदे कोल हुंदा सीगा a² + b² + 2ab अहीं हुंदा सी। ओपन करो 3 × 3 कितना हो गया 9q², 2 × 2 4 + 2 × 3 6 6 × 2 12 12q। आई टर्म हो गई जी तुहाडे कोल। हुण देखो मेरे जो भी स्टेटमेंट गिवन सी, स्टेटमेंट मैंने की कहा कि तुहाडी जिहड़ी भी इक्वेशन फॉर्म के होंगी 3m+1 च ही होगी, मतलब 3m+1 तक ही खत्म हो जाऊगी। इत्थे तो 1 बनता पाया सी और इत्थे की है, इत्थे तो 4 बनता पाया आ, तो इसलिए मैंने इनू भी 1 भी बनाना पऊगा ना किसी ना तरीके, क्योंकि उन्हें तो कहा कि तुहाडा इंटीजर है जो 3m+1 तक ही होना चाहिए उसी फॉर्म। तो लिखो इनू मैं किद्दां लिख सकती हाँ 3 × 3q²। ये तो आप पढ़ ही लिया है, काफ़ी टाइम पिछले दोनों च यूज़ किया। नैक्सट आ गया मेरा 4 नूं आप कितना लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 + 1 किहदे कोल हो गया 4 दे, प्लस दैन इनू कितना लिख सकते हैं 3 4q, मतलब 3 नूं मैं 4 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 12q। हुण देखो 3 किहदे किहदे विच कॉमन आ 1 2 3, 3 इन्हां तिन्हां दे विच कॉमन आ, तो मैं 3 कॉमन ले लिया। जो मैं 3 कॉमन ले लिया इधर कितना बच गया 3q²। जो मैं 3 ये कॉमन ले लिया तो इधर कितना बच जाऊगा 1, दैन जो मैं 3 ये कॉमन ले लिया कितना बच गया 4q। तो नाल आ वाला +1 एज इट इज़। लगी समझ। देखो मैं ये एक 3 कॉमन ले लिया, एक मैं 3 ये कॉमन ले लिया, एक मैं 3 ये कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो मेरे को आह वाली इक्वेशन बन गई और आह वाला +1 जो बचा उन्होंने मैं नाल इदा लिखता। हुण देखो जो आप लिखते सी कि 3 दे नाल कुछ भी आ जाए उन्होंने आप किहदे नाल इंटीजर दे नाल किसी दे नाल शो करते सी, तो किस इंटीजर नाल शो करूँगे पहले तो m1 फिर m2 ना, हुण किहदे नाल लिखोगे वेयर 3q² + 1 + 4q = m3। दैन इनू मैं किहदे नाल शो करता m3 ना, यदा मतलब की हो जाएगा 3 एज इट इज़। इस सारी इक्वेशन की जगह पर मैं की पुट करता m3 नाल की आ गया +1। ठीक है, उन्हें मैंने यही कहा कि तुसीं सम नूं सॉल्व आउट करो, b की वैल्यू तुहानूं 3 गिवन आ। अगर v की वैल्यू तुहानूं 3 गिवन आ, इट मीनस आर दी वैल्यू फिर b तो घट ही होणगियां, 3 तो घट ही होणगियां, कितनियां आ जाणगियां 0 1 2 आ जाणगियां। ठीक है जी, और आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, कदे भी नैगेटिव नहीं आऊगा रिमाइंडर। ठीक है जी, दैन जो तुसीं इहनूं सॉल्व आउट किया 1 बनाया, m2 बनाया, m3 बना लिया। ठीक है जी, और उन्हें की बोलिया साडी फॉर्म हमेशा m+1 तक या फिर 3m या फिर 3m+1 तक ही एग्जिस्ट करे। तो फर्स्टली मेरी केड़ी सी
3m1 तक एग्जिस्ट कराती, फिर 3m2+1 तक एग्जिस्ट कराती, फिर 3m+1 मतलब आ देखो 3+1 3+1 और 3 इक्वेशन दे विच है जी, मतलब पहले सिंपल आ फिर वो +1 दे नाल एग्जिस्ट करती है। ठीक आ, तो उसने कहना कि चाहता कि जिन्ने भी तुहाडे कोल उपर तुसीं आ जिन्ने भी केस सॉल्व कीते आ, एक आप वाला केस सॉल्व किया, ठीक है जी, फिर आप वाला सॉल्व केस किया, फिर आप वाला केस सॉल्व किया, 3 केस सॉल्व किए और तिन्नां दे विच आपां किहड़ा स्केयर वाला पॉजिटिव लिया ना, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वाला ही कॉन्सैप्ट सॉल्व आउट किया। और जो मैं उन्होंने सॉल्व आउट किया तीनों स्टैप नूं, और तीनों स्टैप नूं मैं एग्जिस्ट किन्हां दे विच कराया 3m और 3m+1 दे विच, मतलब पहला 3m तक ही एग्जिस्ट होया, फिर मेरा 3m+1 तक एग्जिस्ट होया, दैन लास्ट वाला भी मेरा 3m+1 तक ही एग्जिस्ट होया। मतलब m की है मेरा कोई भी इंटीजर आ जिहड़ा उन्हें स्टेटमेंट च बोलिया ही सी। ठीक है जी, आई होप समझ लग गया होगा। ठीक है, नहीं तो इन्हों रिपीटिंग तो एक बार देखियो सुनियो, ठीक है जी, समझ आ जाएगा। दैन जो नैक्सट सम आ उन्हें तुसीं खुद सॉल्व आउट करके देखियो। देखो अपना कितों स्टार्ट होया सी, यूक्लिडियन डिवीजन लैमा ਜਾਂ फिर एल्गोरिदम। उन्हें बोलिया कि सी कि तुहानूं कोई भी 2 नंबर्स दिते होणगे, ठीक है जी, तुसीं उन्हें एग्जिस्ट करवाना क्यू और आर च, और लिखने किद्दां आ A=BQ+R। की हुंदा ए अपना की हुंदा डिविडेंट, बी की हुंदा डिवाइजर, क्यू कोशेंट और आर की हुंदा अपना रिमाइंडर। ठीक है जी, दैन उन्होंने अपना और आप इदां लिखदे हुंदे कि सब तो वड्डी वैल्यू अंदर रखते सी उन्होंने की बोलते हैं डिविडेंट, जिन्हें डिवाइड कराना डिविजर, जोड़ा नंबर आता उन्होंने कोशेंट, और जो बच जाता उन्होंने की बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, तो की हो गया ए नूं अंदर रखा, बी नूं डिवाइड कराया, कोशेंट अपना आया और आर की हुंदा रिमाइंडर। हुण देखो उन्होंने मैनूं सम दिता 135 एंड 225, 135 एंड 225 च उन्हें कहना कि चाहया कि तुसीं इस सम नूं सॉल्व आउट करो यूक्लिड डिवीजन की मदद नाल, और कढ़ना किसी वह HCF, और HCF का फुल फॉर्म की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, वह वड्डी वैल्यू जिहड़ी दोनों वैल्यूज़ के नाल जां फिर दोनों टर्म के नाल डिवाइड हो सके। ठीक है जी, फिर आप पहलों की देखा कि इन्होंने दोनों चों वड्डी टर्म किहड़ी, वड्डी टर्म मेरी किहड़ी सी 225, 225 नूं मैं अंदर रखा, दैन बी की जगह तो मैं 135 नूं यूज़ किया, तो फिर की हो गया इधर फैक्टर 1 लिया, 1 दे नाल जो मैं सॉल्व आउट किया मेरे को रिमाइंडर आर कितना बच गया 90, और उन्हें यही बोलिया सीगा जे HCF फाइंड करना फिर उन्नी देर तक उन्होंने सॉल्व आउट करी जाना सामने जिन्नी देर तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है जी, इतने 19 आया, फिर अगे सॉल्व आउट किया, फिर रिमाइंडर 45 आ गया, फिर इन्हों सॉल्व आउट किया, फिर जाके मेरा रिमाइंडर 0 आया। ठीक है जी, ए टर्म च लिखी गए आप A=BQ+R च लिखना, पहलों मैं ए की जगह तो कितना लिखा सी 25, फिर मैं ए की जगह तो कितना लिखा सी 35, दैन फिर मैं ए की जगह तो लिखा सीगा 90, क्योंकि ए अंदर ही रख होंदी सी। ठीक है जी, दैन ए वाली फॉर्म च आप लिखी गए। ठीक है जी, और फिर आप लास्ट च देखा कि जी लाइन के 0 आता वो फस्ट कि नंबर आ रहा 45, वो अपना की होंगे HCF। ठीक है जी, नैक्सट आ गया आपको कोई भी उन्होंने क्या ऑर्डर इंटीजर आ, दैन वी की वैल्यू उन्हें 6 दी हुई है, क्योंकि उन्हें इक्वेशन गिवन दी है 6q+1 6q+3 6q+5। ठीक है जी, इस आप इक्वेशनस नूं इस इक्वेशन नाल कंपेयर करता यूक्लिडियन डिवीजन के नाल, वो की बोलता A=BQ+R। ठीक है जी, ए तो आप कोई भी ऑड इंटीजर ले लिया, हुण बी की जगह तो इत्थे कितना गिवन है 6। ठीक है जी, क्यू की जगह तो क्यू ही है, और आर की जगह तो की इत्थे 1। ठीक है, दैन आपको पता सी आर की वैल्यू रिमाइंडर आप लाई करता है 0 तो लैके बी तक, मतलब बी तो हमेशा छोटा होगा और 0 तो हमेशा बड़ा, और जां फिर 0 के इक्वल आऊगा। तो किहड़ी वैल्यूज़ आउणगियां हुण 0 के इक्वल जां फिर 0 तो बड़ा, 0 1 2 3 4 5, और उन्हें की क्या सी 6 तो छोटा, तो 6 तो छोटा 5 तक ही नंबर आते हैं। ठीक है जी, नैक्सट उन्हें की क्या यूक्लिड डिवीजन नूं यूज़ करो, तो वो कि इक्वेशन होगी A=BQ+R आप यूज़ की, वो आर दी वैल्यूज़ आप इतने फाइंड आउट कर लिया इस तरीके नाल। ठीक है, दैन आप पुट करना शुरू किया, उन्हें गल की सी ऑड इंटीजर्स की। ठीक है जी, मेरा देखो 0 2 4 वाला ये सारे मेरे ईवन आ। ठीक है जी, इसलिए आप इन्हों छड्ड देना है, तो मेरे को ऑड किहड़े आ गए 6q+1 3 5 जो आप उन्होंने दिते सी। ठीक है जी, नैक्सट आप देखा सीगा थर्ड सम च उन्होंने की बोलिया सीगा कि 32 आर्मी वाले आ जो परेड करते हैं, उन्होंने पिछे 616 बंदे आ जोड़े मार्च करते पे हैं। ठीक है जी, तो इनू भी आप इदा 616 बड़ा है, इसलिए आप अंदर रख लेना, 32 नूं डिवाइड करवा देना। ठीक है जी, फिर कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नूं यूज़ कर लेना। ठीक है, नैक्सट आप किया है फोर्थ
फोर्थ सम की सीगा कि आपां नूं इक्वेशन दित्ती सी 3m+1 ठीक है जी। उन्होंने की बोलिया है कि तुसीं इहदे विच कोई भी इंटीजर लैना पॉजिटिव इंटीजर जिहदी स्केयरिंग होवे ठीक है जी। और देखो जदों आपां उहनूं फॉर्म भी किहदे विच करना है 3m और 3m+1 दी ही इक्वेशन च। फस्ट ऑफ ऑल मेरा बी के दे कंपेयर करते हैं। कंपेयर मैं किया ए इज इक्वल टू BQ+R दे नाल। ए दी जगह ते मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया x ठीक है जी। दैन बी की जगह तो मेरे को कितना आ रहा 3 दैन क्यू की जगह तो कितनी आ रही टर्म m दैन आर की जगह तो 0 1 ठीक है। हुण देखो बी की जगह तो मेरे को कितना आ रहा 3 और मैंने पता आर मेरी किहदे विच लाई कर दी है 0 तो लैके बी तक और बी कितना है 3 इट मीनस मेरी आर की वैल्यू लाई करूगी 0 तो लैके 3 तो घट तक। 3 तो घट टर्म किहड़ियां होंदियां 2 1 0 और 0 दे विच की आ ਜਾਂ तो 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ 3 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ 0 ਆ ਗਈ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ 1 ਆ ਗਈ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ 2 ਆ ਗਈ ਬਟ 3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। फस्ट च किया ए की जगह तो मैं x ले लिया इज इक्वल टू बी की जगह तो मैं की ले लिया 3 दैन क्यू एज इट इज़ एम की जगह तो फिर मैं की लिखता क्यू तो इन्हों की करनी सी स्केयरिंग की किन्ने बन गए x स्केयर इज इक्वल टू 3q का होल स्केयर। ओपन अप करो 3q स्केयर का होल स्केयर कि हो गया 9q स्केयर उन्होंने आप की लिख सकते हैं 3 क्यू स्केयर 3 × 3 9 होंदा आ ठीक है जी। तो 3 आ एज इट इज़ रखता जिहड़ी अंदरली ब्रैकेट वाली टर्म आ उन्होंने मैं किहदे नाल लिखता m1 दे नाल ठीक है जी। नैक्सट सम ए की जगह तो मैं क्यू एक्स रखता दैन बी की जगह तो 3 दैन क्यू की जगह तो एज इट इज़ दैन आर की जगह तो पहले 0 से फिर की हो गया आर की जगह तो इतने 1 ठीक है। फिर इन्हों की स्केयरिंग की है कि बन गया a+b का होल स्केयर वो की होंदा सी a² + b² + 2ab यही होंदा सी। इनू ओपन अप किया हुण जो इत्थे ब्रैकेट बच गया 3 दे नाल उहनूं मैं की लिखता m2 मतलब 3 एज इट इज़ जिहड़ी ब्रैकेट वाली टर्म सी उहनूं m2 और +1 एज इट इज़ ठीक है जी। नैक्सट मेरे को किहड़ी टर्म सी x ठीक है ए की जगह तो दैन बी की जगह तो 3 क्यू एज इट इज़ दैन आर की जगह तो 2 क्योंकि आर नूं मैं कितनी देर तक सॉल्व करना यही तीनों टर्म्स तक सॉल्व करना 0 1 2 जिदा इत्थे आर दियाँ 5 वैल्यूज सीगियां तो इन्होंने मैं 5 टाइम सॉल्व किया सी हुण इत्थे 3 आ तो इन्होंने सिर्फ वही 1 2 3 टाइम सॉल्व आउट करना ठीक है जी। a+b का होल स्केयर a² + b² + 2ab ठीक है। तो ओपन अप करता हूँ इन्होंने कॉमन देखा 3 से 3 ले लिया हूँ जो टर्म मेरी ब्रैकेट बची उन्होंने आप कि डिनोट करता m3 देना ठीक है जी। तो फिर 3 एज इट इज़ जी ब्रैकेट वाली टर्म से उन्होंने m3 लिखता नाल कितना आ गया +1 ठीक है जी। उन्हें की कहा सीगा कि तुसी आ वाली टर्म नूं एग्जिस्ट करवाना कि 3m और 3m+1 की वैल्यू च ही एग्जिस्ट करवाना आपां सारे पासे +1 और 3m तक ही वैल्यू नूं फाइंड आउट किया किते भी 3m+2 3m+3 3m+4 नहीं लिखा उन्हें की बोला 3m और 3m+1 तक ही होना तो अपना 3m और 3m+1 तक ही सॉल्व आउट होया ठीक है जी। हाँ जी नैक्सट देखो नैक्सट एक्सरसाइज की बोलता है एक्सप्रैस करना है प्रोडक्ट नूं प्राइम फैक्टर्स बना के हुण गल करदा है प्राइम फैक्टर्स की ठीक है जी। जो तुसीं 1.1 खत्म कीतियां उहदे नीचे एक थ्योरम सी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमैटिक जिन्होंने पंजाबी कहते हैं अंक गणितक की मूलभूत प्रमेग ठीक है जी। हुण ये बोलदा क्या कि ये किहड़े नंबर आ जाते हैं देखो तुसीं पिछली क्लासिस दे विच पढ़ चुके हो नैचुरल नंबरस ठीक है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब कोई भी तुहानूं नंबर दिता होएगा उहदा प्राइम फैक्टर फाइंड करना। प्राइम फैक्टर फाइंड करन तो पहलों अपने दिमाग च आ जाता प्राइम नंबर की हुंदा है देखते हैं। प्राइम नंबर दे विच 2 फैक्टर्स हुंदे आ ठीक है जी। देखो एक ये 2 फैक्टर्स किहड़े होणगे एक तो होगा 1 दैन दूसरा होगा इटसैल्फ ठीक है कि होगा 1 एंड इटसैल्फ। प्राइम नंबर्स किहड़े हुंदे आ 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर उही हुंदे आ जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ 1 दे नाल ही प्रोडक्ट बनाउण जां फिर अपने आप नाल ठीक है जी। प्राइम नंबर की बोलदा इहदे विच सिर्फ उही 2 फैक्टर्स हुंदे आ जिहड़ा एक तो 1 होवे दूसरा अपने आप नाल ही वो डिवाइड हुंदा होवे। हुण देखो मैं 2 ले लिया 1 दे नाल 2 डिवाइड हुंदा आ यस ठीक है जी 2 फैक्टर्स आपस विच आ। हुण देखो 1 दे नाल 2 कट हो सकता है यस मतलब देखो इत्थे रखता मैं 2 1 1 2 ना किया इधर कितना कि 2 कट हो गया
ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੱਗਤਾ ਇੱਥੇ 2 ਦੈਨ ਇੱਥੇ 2 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੇ? ਨੋ। 1 ਔਰ 2 ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 1 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 into 3 1 into 5 1 into 7 ਐਂਡ 1 into 11 1 into 13 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਟ ਸੈਲਫ। 2 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, 2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਆ, 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 1 ਨਾਲ। 5 ਵੀ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨਾਲ। 7 ਵੀ 7 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ 4 ਕੀ ਆ? 4 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 1 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 4 1 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 2 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੋਂ 1 ਮਤਲਬ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ 1 ਐਂਡ ਇਟ ਸੈਲਫ 2 ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ 1 ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 3 5 7 11 13 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 9 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 9 1 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 9 ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਅਗੇਨ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ 24 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਣਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਜੀ, 2 'ਤੇ ਗਿਆ 12, ਅਗੇਨ 2 'ਤੇ ਗਿਆ 6, 2 'ਤੇ ਗਿਆ 3 'ਤੇ ਗਿਆ 1। ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? 2 into 2 into 2 into 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ into 3, ਕਿਉਂਕਿ 2 3 ਟਾਈਮਸ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 24 ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 2 ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ। 3 ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ? 2 ਦੀ ਕਿਊਬ into 3। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ 24 ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 24 1 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 12 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ 24 ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, 124 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜੀ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, 12 into 2 24 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ 3 8 ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਹੁੰਦਾ 3 into 8 ਜੀ। 4 ਔਰ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, 4 and 6 ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 24। ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ? 2 3 5 7 ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 12 ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 12 ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 8 ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 6 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਈ 2 3 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ 2 3। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2 ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਆ। ਐਕਸਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕੰਪੋजिट फैक्टर ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੱਟ, 2 1 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ 5 1 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 24 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਅਤੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪੋजिट ਵਾਲੀ ਵੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 24 ਦੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਬਣਨ, ਔਰ ਜੇ 2 ਬਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅਗਰ 3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, 4 ਟਰਮਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ? ਕੰਪੋजिट। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇਖੋ, express each number as product of its prime factor। फर्स्ट किहड़ा 140 आ। हुण इहदी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो करो, किद्दां करांगे? 140 रखो, फैक्टर किद्दां बनाई दिया? 2 ते गया, कितना हो गया? 70। अगेन मेरा 2 ते गया, कितना हो गया? 35। दैन फिर 5 दे टेबल ते गया, 7 × 7 कितना? ओ सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना? 1। ठीक है, 7 कट गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ? 2 × 2 × 5 × 7 ਆਹੀ ਬਣੇ 2 × 2 5 7। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ 2 ਟਾਈਮਸ, ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 × 7। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ। ਆਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ 156। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ 156 ਨੂੰ ਅਗੇਨ 156 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 156 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗੇ? 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 78। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 39। ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 13 ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ 1। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹਦੇ? 2 × 2 × 3 × 13। तो ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਟਾਈਮਸ ਆ, तो ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 × 13 ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ? 2 3 5 7 11 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 2 5 7 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ, 2 3 13 ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੇਮ ਆ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ LCM। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LCM ਦੀ। ਐਂਡ HCF ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ LCM into HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब मेरे को पेयर दिता एक 26 एंड 29 का, सॉरी 91 का। ਉਹਦੇ में ਕੀ ਉਹਦਾ LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ਜਦੋਂ फाइंड कर लिया फिर ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ मैं सॉल्व आउट करना है, दोनों ਨੂੰ इक्वल रख के। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं की करूँगी 26 एंड 91 ਦੇ मैं प्राइम फैक्टर फाइंड करती हाँ। ਹੁਣ देखो LCM एंड HCF फाइंड करना पहलों, फिर की वेरीफाई की करना LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब कि पंजाबी की हो गया संख्यावां का गुणनफल किन्हां दे इक्वल आना चाहिए? LCM ते HCF नूं मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तो नंबर गिवन है 26 एंड 91। ठीक है जी। पहलों तो मैं इन्हां दे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करती हूँ दोनों दे। 26 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो, किदा फाइंड कर सकते हो? दिस। ठीक है जी। तो कितना हो गया? 2 ते गया, 13 1। इट मीनस मेरे तो 26 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया? 2 × 13। ठीक है जी। प्राइम फैक्टर ऑफ 26 कितना आ गया? 2 × 13। दैन नैक्सट गल हो रही है 91 की। तो 91 का फैक्टर लो, वो प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो कितना हो गया? 7 ते गया, फिर कितना आ गया? 13 ते गया 1। ठीक है। तो मेरे प्राइम फैक्टर ऑफ 91 कितना आ गया मेरे को? 7 × 13 यही आ गया। उन्हें क्या सीगा? HCF फाइंड करना है।
ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। तो इन्हां च कॉमन फैक्टर किहड़ा है 13 और हाईएस्ट भी किहड़ा है 13, मतलब मेरे को इहदे विच HCF कितना आ जाऊगा 13, क्योंकि दोनों च कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। हुण LCM किद्दां हुंदा सीगा, उहने की बोलिया कैल्शियम भी फाइंड करो। LCM की बोलदा आ, LCM बोलदा हुंदा लार्जर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਆ 13 ਔਰ ਦੋਨੋਂ 13 ਦੀ ਪਾਰੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਆ, 13 ਦੀ ਪਾਰੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ 2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਉੱਪਰ, ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ 7, ਬਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 7, ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 13, ਦੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2। ਅਗਰ 2 ਸੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਨਾਲ 2 ਨਾਲ 7। तो आंसर इज मल्टीप्लाई करके 182, मतलब LCM मेरे को कितना आ गया 182। मतलब की है पहला तो हो गया मैं HCF फाइंड कर लिया, मैं LCM फाइंड कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया वेरीफाई करना इस इक्वेशन में LCM तो HCF में मल्टीप्लाई करना। इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई किया LCM और HCF में किहदे कोल रख देना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में तो किहड़े सीगे 26 एंड 91। उन्होंने यही कहा कि संख्यावां का गुणनफल करो। संख्यावां किहड़ियां सी मेरे तो 26 एंड 91, उन्हों का गुणन कर दो। ठीक है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा है दिस 23 66। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। इट मीनस क्या मेरा आंसर वेरीफाई हो रहा है। मतलब क्या मैं LCM भी फाइंड किया, HCF भी फाइंड किया, फिर मैं की रखा उन्होंने वेरीफाई किया इन्होंने दोनों रख के। मतलब की है कि जो मैं LCM HCF कड्ढे उन्होंने एक साइड पर मल्टीप्लाई कर दो, दैन दूसरी साइड पर जो तुहाडे कोल वैल्यूज़ दित्तियां सी टर्म उन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर उन्होंने दोनों के आंसरस इक्वल आ रहा इट मीनस अपनी जो भी थानू इक्वेशन गिवन सी जां टर्म्स गिवन सी वो वेरीफाई हो गई। ठीक है जी, नैक्सट एक होर कढ़ के देख लें सम। हुण देखो नैक्सट सम दिता आपां 5, 10 एंड 92। ठीक है जी, हुण इन्होंने उन्होंने की कहा ये LCM फाइंड करो, HCF फाइंड करो। ठीक है जी, फिर की करना वेरीफाई कर देना है LCM और HCF ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके किहदे इक्वल रख देना है इन्हां दोनों नंबर्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके उन्हां दे इक्वल। ठीक है जी, फस्ट ऑफ ऑल इन्हां दा आपां प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तां जो आपां उहदे विचों LCM और HCF फाइंड कर सकीए। ठीक है जी, पहलों आपां 5, 10 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर्स किद्दां फाइंड होणगे, फस्ट ऑफ ऑल मेरा 5, 10 आ, फस्टली 2 ते गया, आंसर इज 225। ठीक है जी, फिर 5 ते गया, आंसर इज 51। ठीक है जी, फिर मेरा 3 ते गया, दैन आंसर इज 17, फिर 17 ते जाऊगा, आंसर इज 1। ठीक है जी, मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 5, 10 के किहड़े किहड़े बने 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है जी, नैक्सट मेरे को किहड़ी इक्वेशन आ 92 दी। ठीक है, तो फिर 92 का फाइंड करो। 92 का किद्दां फाइंड हो सकता है, 2 ते गया 46। ठीक है जी, अगेन 2 ते गया 23, दैन फिर कितने जाऊगा 23 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 92 कितना हो गया 2 × 2 × 23। इनू आप इदा भी लिख सकते हैं 2 टाइम 2 आ, तो 2 की स्केयरिंग करती नाल कितना हो गया 23। हुण दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए, फिर आप की फाइंड करना है इन्हां दा HCF। और HCF की बोलता सीगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखो कॉमन इच की आ 2 और ऊपर भी कॉमन की आ 2, तो इट मीनस मेरे कोल इहदा HCF कितना होगा 2। ठीक है, क्योंकि कॉमन एलीमेंट की गल करदा, कॉमन तो दोनों साइड की है, सिर्फ 2 ही है ना कॉमन, तो ये मेरा HCF कितना आ गया 2। फिर उन्हें गल की LCM की। LCM च उन्हें की बोलिया सीगा, LCM च उन्हें की बोलिया सीगा कि सब तो मतलब वही लार्ज पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, मतलब इदा का नंबर देखना आ जोड़ा कॉमन होवे बट उन्होंने सब तो वड्डी पावर वाला नंबर चूज़ करना आ। ठीक है जी, दैन बाकियां नूं एज इट इज़ लिख लेना। हुण आ जाओ
इधर कितना 2 दी स्केयरिंग इंटू 23 दा इधर कितना 2 5 3 17 कॉमन किहड़ा इन्हां दोनों चों 2 2 उन्हें की किया लार्ज पावर वाला नंबर लिखना है। ਹੁਣ देखो इत्थे 2 दी पावर 1 आ इत्थे 2 दी पावर 2 आ इट मीनस मैं इत्थे किहड़ा लिखना है 2 दी पावर 2 वाला यही उन्हें बोलिया ना कि लार्जर पावर वाला कॉमन लिखो फैक्टर तो मेरा कॉमन फैक्टर एक तो आ गया 2 बट इन्होंने दोनों चो 2 की पावर वड्डी किहड़ी सी इहदी 1 सी 2 तो वड्डी पावर वाला 2 वो मैं लिख लिया ठीक है जी। नैक्सट उन्हें गल की नॉन कॉमन फैक्टर जोड़े सेम नहीं आ ठीक है जी तो किहड़े किहड़े आ उपर किहड़ा 5 3 17 आ तो एज इट इज़ आऊगा ठीक है जी। दैन नीचे किहड़ा आ रहा है फिर 23 मतलब 5 भी कॉमन नहीं सीगा तो एज इट इज़ आ गया 3 एज इट इज़ 17 एज इट इज़ और 23 भी एज इट इज़ ठीक है बिकॉज ये सारे इदां ही आ जाएंगे और इन्होंने सारे आपस च मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आ जाना तुहाडा दिस। लगी समझ। HCF किद्दां फाइंड करीदा कि आपां दोनों दे विचों कॉमन देखीदा हुंदा सी उपरों सारिਆਂ चों कॉमन किहड़ा 2 नीचे भी कॉमन 2 मतलब की है कि मेरे को 2 सीगा जिहड़ा कॉमन आंदा सी इसलिए मेरा HCF कितना हो गया 2। दैन LCM की गल की करदा LCM दे विच तुसीं सारे नंबर लिखने हुंदे आ बट पहलों नंबर वो लिखना हुंदा कि अगर तुहाडे तो उपर भी सेम नंबर पिया नीचे भी सेम नंबर पिया पहलों आपां उहदी पावर चैक करनी है जिहदी पावर ज़्यादा है वो आपां लिख लेना। हुण देखो उपर भी 2 सी नीचे भी 2 सी बट नीचे वाले 2 की पावर इनक्रीज सी ज़्यादा सी तो उन्होंने मैं इदा लिखना। दैन बाकी वाले 5 उपर ही पिया आ 3 उपर पिया 17 उपर पिया नीचे नहीं पिया इन्होंने एज इट इज़ चक के लिखता। दैन 23 आ नीचे ही पिया उपर नहीं किते भी पिया इनू भी एज इट इज़ लिखता। मल्टीप्लाई करन ते कितना आ गया दिस ठीक है जी। हुण आपां की करना इनू वेरीफाई करन दा की बोलिया सी उन्हें कि LCM इंटू HCF कर दो दोनों मल्टीप्लाई कर दो किहदे कोल रख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरस ठीक है जी 2 नंबरस। देखो LCM मेरा कितना आ गया 2 3 4 6 दैन HCF मेरा कितना आ गया सी 2। हुण प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरस 2 नंबरस मेरे को किहड़े सीगे 5 10 और 92 ठीक है जी। हुण इन्हां आपस इधरों इन्हां मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आ रहा तुहाडा इन्ना दैन 5 10 और 92 ना करो वह भी आंसर कितना आ रहा है दिस मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा इट मीनस मेरी इक्वेशन आ जिहड़ा सम आ जिहड़ी टर्म्स आ सारी वेरीफाई हो रही है ठीक है। HCF और LCM कढ़ना आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इन्हां ठीक है जी। अगर आ रही होगी दैन तुसीं एक बार फिर मैंने कमेंट करके दस दिओ आप एक बार फिर समझा देंगे ठीक है जी। अदरवाइज तुसीं वीडियोज़ नूं मतलब रिपीट ते देख लियो रिपीट ते सुन लियो फिर भी समझ आ जाऊगा ठीक है। हुण नैक्सट देखो आप 2 सम करवाया इहदा थर्ड वाला पार्ट आ तुसीं खुद सॉल्व आउट करन दी ट्राई करियो ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं थर्ड सम अच्छा वाला तुसीं हुण आप करना है ठीक है जिद्दां 2 करवाया इहदे नाल वाला थर्ड करियो। नैक्सट की बोलदा फाइंड द LCM HCF बाय द इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मैथड। हुण देखो उन्होंने हुण 3 टर्म्स वाले सम दिते आ इन्हां दे विच की करना आपां LCM और HCF फाइंड करना है बट किहदे थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है जी। हुण तक तुहानूं प्राइम फैक्टराइजेशन का पता चल ही चुक्या होएगा ठीक है। तो मैं एक सम सॉल्व करती हाँ दैन बाकी 2 तुसीं उहदे थ्रू खुद सॉल्व आउट करन दी ट्राई करियो ठीक है। हुण देखो इन्हां दी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी आपां ठीक है जी। फस्टली आप इन्हां दे फैक्टर्स बनाने HCF और LCM फाइंड करन लई फैक्टर्स देखो पहले 12 दे फैक्टर्स फाइंड करो 12 का फैक्टर किहड़ा हो जाएगा 3 4 ते गया फिर 2 दैन 2 2 ते जा 1 ठीक है जी। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 किन्ने बन गया 3 2 2 तो उन्हें कितना लिख सकते हो 3 2 2 टाइम्स आ दैन वो 2 टाइम्स पार पा लो ठीक है जी। नैक्सट मेरे को किहड़ा आ रहा आ 15 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो किद्दां हो सकता है फस्ट 3 ते गया फिर 5 आ जाऊगा ठीक है जी दैन 5 ते गया 1 आ जाऊगा तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 दे किन्ने हो गए 3 इंटू 5 ठीक है जी। दैन नैक्सट मेरे को कितना है 21 का प्राइम फैक्टर कितना फाइंड आउट होगा 3 ते गया 7 दैन 7 ते गया 1 तो मतलब कि हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 तीनों के प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले ठीक है जी। फिर उन्हें की कहा सीगा इन्हां चों HCF फाइंड करना है तो HCF देखो HCF की बोलता सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुण इन्हां दे देखो तीनों चों कॉमन फैक्टर किहड़ा है तीनों चों कॉमन की आ रहा है 3 तीनों दे विचों कॉमन मेरे कोल की आ रहा है
3, तो मेरा HCM की हो गया 3। दैन गल की उन्हें LCM की, कि LCM भी फाइंड करो। हुण LCM देखो, LCM च उन्हें की बोलिया सीगा कि तुसी पहलों तो वो वाला कॉमन फैक्टर चूज़ करना आ जिहदी पावर हाईएस्ट होवे। हुण देखो इन्हां तिन्नां दे विच कॉमन की है 3 3 3, और तिन्नां दी पावर किहड़ी है 1 1 1, मतलब इन्हां चों कोई भी एक चुक लो, मैं कोई भी एक 3 दी पावर 1 वाला नंबर चुक लिया। दैन उन्हें की गल कीती सीगी नॉन कॉमन, ठीक है जी, जिहड़ा कॉमन नहीं आ, तो कॉमन नहीं किहड़ा होगा, एक आ देखो 2 उपर नॉन कॉमन किहड़ा आ रहा 2, और 2 दी नाल पावर कितनी आ रही है 2, ठीक है जी, क्योंकि वो 2 टाइम सीगा। दैन फिर नीचे एक होर किहड़ा आ गया नॉन कॉमन 5, दैन होर किहड़ा नॉन कॉमन आ रहा है 7, ठीक है जी। तो इन्हें लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 नूं ओपन अप कर दो 5 इंटू 7, तो मेरा LCM कितना हो गया इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करन ते 420। उन्हें की किया सीगा HCF और LCM फाइंड करना है। HCF अपना की हुंदा है जी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरा इत्थे 3 ही है जिहड़ा तिन्नां च आ रहा है। दैन LCM की हुंदा पहलों वो चूज़ करना, अगर तुहाडे कोल तिन्नां दे विच कॉमन फैक्टर आ उहदी पावर चैक करनी है, सब तो जिहदी वड्डी पावर आ उहनूं लिख लेना। हुण इत्थे 3 सीगा और तिन्नां दे विच एक पावर ही वड्डी सी, तो इत्थे मैं 3 नूं 1 टाइम लिखता, ठीक है, उहदी पावर 1 पा के। फिर जिहड़े नॉन कॉमन आ, मतलब देखो नॉन कॉमन 2 इधर ही है, इन्हां दोनों च है नहीं, इसलिए वो भी एज इट इज़ आ गया। दैन 5 इन्हां दोनों च है नहीं, वो भी एज इट इज़ आ गया। दैन 7 इन्हां दोनों उपर च है नहीं, इधर आ गया, ठीक है। इन्हों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज़ 420। देखो एक होर सॉल्व आउट करते हैं, 3 टर्म्स दी LCM और HCF फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं की करूँगी इदां दा फैक्टर फाइंड करूँगी, 17 का फैक्टर फाइंड करो, 17 इट सैल्फ ही है, मतलब 17 ते जाऊगा 1, दैन 23 का LCM 23 इट सैल्फ ऑफ 1, दैन 29 इट सैल्फ ऑफ दैन 1, तो मतलब ये प्राइम फैक्टर ऑफ 17 के इक्वल आ गया 17, ठीक है। दैन 17 इंटू 1 कर सकते हैं, तो 17 आ जाएगा। दैन प्राइम फैक्टर ऑफ 23 के इक्वल आ गया 23 इंटू 1, दैन प्राइम फैक्टर ऑफ 29 के इक्वल आ गया 29 इंटू 1। देखो 17 मैं 1 मल्टीप्लाई की 17 आ जाना, 23 में 1 मल्टीप्लाई की 23 आ जाना, 29 में 1 मल्टीप्लाई की 29 आ जाना, मतलब यही हो सकता ना 1 1 ना करो 1 आ जाऊगा, अगेन 1 1 ना करो, अगेन 1 1 ना करो, आई टर्म आ गई। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ HCF फाइंड करना, और HCF अपना की बोलना ਹੁੰਦਾ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन्होंने तो देखो कॉमन फैक्टर ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 1, तो मेरा HCF कितना हो गया 1, ठीक है जी। LCM की ਹੁੰਦਾ है, LCM की बोलदा है वो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ कॉमन फैक्टर ਆ ਉਹਦੀ पावर चेक करो। कॉमन फैक्टर मेरा ਇੱਥੇ कितना है सिर्फ 1, ठीक है जी। दैन नॉन कॉमन ਕਿਹੜਾ है 17 हो गया, 23 और 29। देखो 17 ही ना दोनों में है नहीं, नॉन फैक्टर हो गया, ठीक है, नॉन कॉमन। दैन 23 ना दोनों च है नहीं, नॉन कॉमन फैक्टर। दैन 29 ऊपर लिया दोनों च है नहीं, तो इन्होंने आपस सारे मल्टीप्लाई करो, मेरा आंसर कितना आ रहा है दिस HCF 1, दैन LCM दिस, ठीक है जी। हम फाइंड करना आया फस्ट किया जो थानू टर्म्स देनी उन्होंने पहले तो तुम उन्होंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उन्होंने प्राइम फैक्टर्स के HCF और LCM फाइंड करना, ठीक है जी। हम नैक्सट देखो ਆਪਾਂ तो फाइंड करते हैं, ठीक है जी, मेरे नाल दे दो सम फाइंड करते। हुण ये वाला तुसीं खुद सॉल्व करना। नैक्सट आ जो 4th है, गिवन दैट HCF 306 और 657 नंबर का HCF कितना गिवन है 9, फाइंड करना मैं इन्हां यही सेम नंबर का HCF 9 आ, और यही सेम नंबर का मैं की फाइंड करना LCM, ठीक है। देखो HCF 306657 का कितना गिवन है 9, LCM 306657 का मैं फाइंड करना, मतलब देखो दोनों जो अंदरले नंबर आ दोनों सेम है ना। HCF वो 9 निकलिया आ जो उन्होंने दिता ही आ, वो कहते तुम सिर्फ LCM फाइंड करो। हुण देखो इत्थे LCM आप किद्दां फाइंड करांगे, फस्ट आ जाओ सैकेंड सम ते, फॉर्मूला याद आ उन्हें की बोलिया सीगा LCM एंड HCF जो तुसीं इन्हां दोनों नूं आपस च मल्टीप्लाई करदे हो किहदे इक्वल आंदा द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हुण देखो LCM और HCF नूं मल्टीप्लाई करो, HCF ऑफ 306657 किहदे नाल मल्टीप्लाई करना इन्हूं मैं LCM दे नाल, LCM ऑफ 306657 वही बोले सुने कि LCM और HCF नूं मल्टीप्लाई करो, तो मैं लिखता ना LCM और HCF नूं मल्टीप्लाई करके लिखता, और उन्हें लिखा कि इक्वल सी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किहड़े सी जिहड़े अपन गिवन हुंदे सी। देखो टू नंबर्स किहड़े आ दिस 306 और 657, यही है ना दो नंबर का गिवन। देखो
ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ LCM ਔਰ HCF ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਵਨ ਆ, ਔਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਸੀ 306 ਔਰ 657 ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HCF ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 9 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ 9। ਹੁਣ LCM ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੂੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। तो इधर कितनी टर्म हो गई 306 इंटू 657। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੀ मैं चीज़ फाइंड करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 की हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए फिर मैं 9 ਨੂੰ दूसरी साइड पर ले जाऊँगी, तो इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके 9 की हो जाऊगा डिवाइड। तो इधर की बच गया LCM 306 657 एज इट इज़ बच गया, ठीक है जी। दैन इधरली साइड की सी 306 इंटू 657, दैन जो 9 इधर मल्टीप्लाई सी वो इधर जाके की हो गया डिवाइड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 657 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 73। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 306 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 73 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2038। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, HCF ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, LCM ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ। HCF ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ HCF ਅਤੇ LCM ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 9 ਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 9 डिवाइड हो गया, ठीक है जी। फिर मैं 9 ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਦਿਸ। तो मेरा LCM ऑफ 306657 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਕੁਇਡੀਅਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 24 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਔਰ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 140 ਦੀ, ਮੈਂ 140 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ 2 2 5 7, 2 ਟਾਈਮਸ ਇਸ ਲਈ 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਔਰ 7, ठीक है। नैक्सट फिर आप 156 सॉल्व आउट किया, वो प्राइम फैक्टर्स बनाए इस थ्रू ना, दैन वो फैक्टर्स लिखते। दैन नैक्सट स्टैप आया कि वो कहता तुम LCM और HCF फाइंड करना है पहलों, फिर उन्होंने वैरीफाई करना कि LCM तो HCF में जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो कि आंसर के इक्वल आना चाहिए, जोड़ियाँ दो टर्म्स थानू दित्तियां आ उन्होंने मल्टीप्लाई करो वो इक्वल आना चाहिए। फर्स्टली किया कि मैं इन्होंने दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर उन्होंने मैं HCF लिया तो LCM लिया, फिर इन्होंने दोनों आपस के मल्टीप्लाई, इन्होंने दोनों LCM और HCF में मल्टीप्लाई करके एक साइड पर रखा, दूसरी साइड पर जो दो नंबर गिवन से उन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा, दोनों के आंसर सेम आए, इट मीनस ये अपनी वेरीफिकेशन ट्रू हुई है, ठीक है जी। सेम एज दैट फिर आप ये नाल दा एक 510 and 92 लिया, ठीक है जी। उन्होंने दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड किए, उन्होंने चो फिर मैं की फाइंड किया HCF, फिर फाइंड किया मैं LCM, फिर उन्होंने दोनों वेरीफाई करता, राइट। दैन आ गया फिर 3 टर्म्स वाला, ठीक है। उन्होंने की बोलता है HCF फाइंड करो और LCM फाइंड करो। फर्स्टली मैं इन्होंने प्राइम फैक्टर तीनों के सॉल्व आउट किए, ठीक है जी, तीनों के प्राइम फैक्टर सॉल्व आउट किए, फिर आप उन्होंने की लिया HCF, फिर उस तो बाद उन्होंने तीनों का की लिया LCM, ठीक है जी। दैन अगेन आप ये एक सम होर फाइंड किया जिसका LCM और HCF कढ़ना सी, तीनों के प्राइम फैक्टर सॉल्व आउट किए, फिर उन्होंने HCF कढ़िया, फिर LCM कढ़ लिया, राइट,
ठीक आ। नैक्सट फोर्थ सम आप किया कि वो HCF गिवन से 2 नंबर्स का, वो कहते उन्होंने 2 नंबर्स का LCM फाइंड करो। तो उन्होंने फॉर्मूला सैकेंड सम के ही दिता से स्टेटमेंट वेरीफाई किदा करीदा है, उस फॉर्मूलाज आप इत्थे अप्लाई करता। ठीक है, LCM तो HCF में मल्टीप्लाई करता, जोड़े 2 नंबर से उन्होंने दूसरी साइड रख के मल्टीप्लाई करवाता। HCF मेरा कितना गिवन दिता से उन्होंने 9, तो इतने 9 पुट करता। इतने LCM आप फाइंड करने से उन्होंने एज इट इज़ रखता, इन्होंने दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करके साइड पर रखता। हुण देखो जो टर्म आप फाइंड करनी होंगी वो कुछ भी टर्म लगती है दूसरी साइड चल जाती है। हुण इत्थे 9 सीगा, 9 दूजी साइड जाके इत्थे मल्टीप्लाई 9 सी, दूजी साइड जाके वो किहड़ा हो गया डिवाइड का। तो मैं 9 नूं 657 दे नाल कट्टता, आंसर कितना आ गया 73। तो मैं 306 नूं मतलब 306 नूं मैं 73 नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर मेरे को दिस आ गया। ठीक है जी, और ये वाला आंसर किहदा आ गया सी LCM ऑफ दिस नंबर्स। लगी समझ? इदा करियो एक बार सारिਆਂ हौली हौली समझण की ट्राई करियो। ठीक है जी, फस्ट तो एंड प्रॉपरली ध्यान नाल कला कला स्टैप ध्यान नाल सुनियो और इनू नाल अपना कॉपी पैन लैके बैठियो और खुद सॉल्व आउट करने की नाल ट्राई करियो। ठीक है जी, प्रैक्टिस भी जरूरी है। हाँ जी, बाकी देखो जोड़े आवड़े 3 सम आ, ठीक है जी, थ्रैटिकल पोर्शनस आ और इन्होंने मैं तुहानूं भेज भी चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ। ठीक है जी, तो आ सारे इदां ही जिद्दां पैन उपरों सॉल्व आउट करते आए हैं। ठीक है, इदां HCF LCM वेरीफिकेशन सारी चैक करनी आ। ठीक है, हुण ट्राई करियो जोड़े जोड़े सम मैं तुहानूं बोलिया कि तुसीं खुद नाल आप सॉल्व आउट करके देखने आ, जोड़े मैं छड्डिया वो खुद ट्राई करियो, समझियो, दैन सारे जाने सॉल्व आउट करके देखियो और नाल कॉपी ते प्रॉपरली सारे फॉर्मूलाज लिखने आ। ठीक है जी, सारे सम्स नूं सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, छड्डना कुछ नहीं आ। अज लई इन्ना बहुत आ, नैक्सट वाले आप फिर नैक्सट वाला सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है जी, इन्ने नूं ध्यान नाल कर लो और वो वरीड नहीं होना है एकदम ही हाँ जी ये हो गया। हौली हौली समझो, बहुत ईजी है। अद्धे तो ज़्यादा चीज़ां तुसीं वो आ जिहड़ियां तुसीं पिछे पढ़ के ही आ चुके हो। ठीक है, उन्होंने ही आप अप्लाई किया होया आ।